Hello and welcome. Today is the topic which is central to this ordinance, and that is regarding ejectment of tenant. What are the rights of tenant there? What are the liabilities of tenant? What is the procedure there? What is the ground that is available for landlord to evict the tenant from his premises? So let us start. Eviction of tenant under section 13 subsection 1 and subsection 2. Okay, it's a very long section. ये जो section है बहुत lengthy भी है. Any tenant, whether his tenancy agreement exists or not, so even if there is no tenancy agreement, he can't be evicted without implementation of present section. So even if there is someone who does not have, even if he is a possessor, वो उसने कब्जा किया हुआ है, वो वैसे उधर बैठा हुआ है, उसके पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तब भी सेक्शन 13 जो है वो एम्प्लॉय होगी. Any decree passed for eviction of tenant before or after present enactment in contravention to the provision of this ordinance is void. यानी इस ऑर्डिनेंस से पहले अगर कोई और, ऑफ कोर्स 1959 में ये ऑर्डिनेंस है, तो इससे पहले जब भी कोई ऐसी कोई जजमेंट हो जो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाती हो, तो वो जजमेंट ख़त्म है. फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स वेयर बाय इजेक्टमेंट टेक्स प्लेस. Where agreement for the payment of rent exists, tenant is liable to pay rent on the date mutually agreed for. So if he does not pay on the set date, then he will be considered a defaulter. Where such agreement does not exist, tenant is bound to pay or tender rent maximum within 60 days from the last payment of rent. Tenant is liable to pay or tender rent within 15 days after the expiry of agreed date. So if a date has been expired, so he still have 15 days to deposit the rent and he will not be considered a defaulter. In case controller is satisfied that tenant has not been in default before, he may order the tenant to pay the rent, and if the tenant does not do so, controller will reject the application. Section 13 to यही कंटिन्यू है. Controller is satisfied after inquiry that tenant without written consent of landlord has used rent premises against the terms and conditions of the agreement. For example, वहाँ पे कंडीशन थी कि आपने इसको रिहायशी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और वहाँ पे वो कमर्शियल एक्टिविटी करा, तो उसने यानी कि जो एग्रीमेंट है उसकी जो क्लॉजेज है उसके खिलाफ नहीं आपने जाना. और ही हैज़ सबलेट होल और एनी पार्ट ऑफ टेनेंसी, या उसने पूरा घर था उसके पास तो उसका एक कमरा उसने सबलेट कर दिया, और या पूरा घर सबलेट कर दे. टेनेंट हैज़ डैमेज यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस. टेनेंट इज़ द कॉज ऑफ न्यूसेंस टू अदर्स इन नेबरहुड. टेनेंट हैज़ फेल्ड टू ऑक्यूपाई द लैंड फॉर कंटिन्यूस 4 months विदाउट रीजनेबल कॉज एक्सेप्ट इफ सच प्रेमिसेस आर सिचुएटेड इन हिल स्टेशन. यानी कि 4 महीने तक जो है वो उसने कोई रीज़नेबल कॉज भी ना, और वो जो लैंड जो टेनेंट जो है वो उसने वो लैंड को ऑक्यूपाई ना किया हो. लैंडलॉर्ड रिक्वायर सच साइट फॉर कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड नेसेसरी सैंक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड. या फिर ऐसे है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करनी हो और उसने इसके लिए मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसने उनसे इजाज़त भी ले ली हो. तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स की बेस पे आप टेनेंट की एविक्शन को, उसको इजेक्ट करने को आप डिमांड कर सकते हैं. अगेन सेक्शन 13(2) ही कंटिन्यू है. इन ऑल ऑफ अबव केसेस कंट्रोलर में ऑर्डर फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट by giving him reasonable time, which can't be more than 4 months in aggregate. Controller, I'm sorry for the mistake here, double R आ गया, एक R होना चाहिए. Controller may also reject the application in case of non-satisfaction. When water charges or electricity charges or both are payable by tenant, then both bills will be considered part of rent. Rent remitted by money order or deposited to controller will be considered valid.
सो इफ रेंट इज डिपॉजिटेड टू इवन कंट्रोलर, यानी कि जब एप्लीकेशन चल रही है तो फिर जाहिर बात है रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को नहीं दिया जाता, फिर तो वो कंट्रोलर को ही दिया जाता है। तो यही समझा जाएगा कि वो अपनी जो उसकी लाइबिलिटी है वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है। ग्राउंड्स फॉर लैंडलॉर्ड फॉर एप्लीकेशन इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ओके, सेक्शन 13(3) में अब पहले तो हमने जनरल बात की, जनरल ग्राउंड्स के हैं। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग के इसके अलावा क्या ग्राउंड्स बनते हैं, यानी कि अगर टेनेंट ने कोई वो वाले काम जो पीछे हमने वो बात की उस तरह के काम ना हो, ना लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन करानी है वहाँ पे, ना लैंडलॉर्ड को जो है वो, ना टेनेंट ने वहाँ पे कोई टाइम पे वो किराया दे रहा है, टेनेंट ने जो कोई गलत काम नहीं किया ऐसा, लेकिन उसके अलावा भी लैंडलॉर्ड के पास कुछ ग्राउंड्स है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग रिहायशी इमारत के लिए, वेयर लैंडलॉर्ड इज इन रियल नीड ऑफ द बिल्डिंग सो लेट ऑन रेंट आइदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज चिल्ड्रन। दिस नीड मस्ट फॉलो बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट, यानी इसको अपने लिए सख्त ज़रूरत है उस जगह की। वेयर लैंडलॉर्ड इज इन नीड ऑफ रेजिडेंस वेयर ही डज नॉट occupy another residential building in the same locality. So for example, if he owns a land in a special locality and he got, for let's say, a new job there, so he will need it, and he does not have any other building in that area, so he may demand ejectment. Where provision of this ordinance have come into force and landlord has been evicted from residential building without any reasonable cause and he is seeking towards his only residential building for, अगर इस ऑर्डिनेंस से पहले उस शख्स को विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज उसकी बिल्डिंग से निकाल दिया गया हो और टेनेंट जो है वो उसने पोजेशन किसी तरीके से हासिल कर ली हो, तो इस ऑर्डिनेंस के प्रोमulgate होने के बाद दोबारा लैंडलॉर्ड के पास ये चांस आ जाता है। अभी सेक्शन 13(3) कंटिन्यू कर रही है। इफ़ लैंडलॉर्ड, अब ग्राउंड्स फॉर लैंडलॉर्ड फॉर एप्लीकेशन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल और शेड्यूल्ड बिल्डिंग। If landlord requires for his own use or for his children, he or his child are not occupying the same kind of building in the same area, which suits him or his children at such time. If after the commencement of this law he has not been evicted from the said premises without any sufficient cause, तो तकरीबन ये वही हैं जो भी हमने पहले पढ़ लिए। इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट मौजूद है तो फिर आप नॉन रेजिडेंशियल और शेड्यूल्ड बिल्डिंग में नहीं जा सकते। इन केस इफ सच लैंडलॉर्ड ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग और रेंटिंग लैंड, ही विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेम टाइप ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंटिल द सेम हैड बिकम अनफिट। फॉर एग्जांपल, अगर कि उस शख्स ने कहीं पे उसी लोकेलिटी में या बिल्कुल बल्कि वो उस लोकेलिटी ना भी हो, तो उसने उसी तरह की कोई और बिल्डिंग जो है वो या उसने रेंट पे ले ली है या उसने परचेज़ कर ली है, तो फिर वो नहीं होगा ऐसे, फिर उसको वो बिल्डिंग नहीं मिलेगी। पावर्स ऑफ कंट्रोलर अंडर सेक्शन 13(3), वही 13। अब इसी सेक्शन में कंट्रोलर की पावर्स क्या है? कंट्रोलर आफ्टर सेटिस्फैक्शन में डायरेक्ट द टेनेंट टू पुट लैंडलॉर्ड इन पोजेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, जो डेट वो खुद सेलेक्ट करेगा। Controller has to be satisfied by the claims of landlord or his application will be rejected. So you need to satisfy controller about all of the grounds that we have discussed before. Controller may give a reasonable time and may extend the same up to maximum 4 months in aggregate. यानी पहले वो सब फर्ज के वो महीने का टाइम होता है, फिर उसमें 10 दिन और ऐड कर ले, फिर 15 दिन और ऐड करे, तो ऐसे एडिशन होती है। The time limit of 4 months reduces to 4 weeks where tenant or his wife or dependent children occupies property in the same locality within 60 days preceding this the commencement of this ordinance। अगर इस ऑर्डिनेंस की कमेंसमेंट से पहले किसी शख्स ने, कि बीवी या बच्चे ने जो उस पर डिपेंडेंट है, उनके पास उसी तरह की प्रॉपर्टी में से लैंडलॉर्ड चाह रहा है कि टेनेंट निकले, उसी तरह की कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी बीवी या उसका डिपेंडेंट चाइल्ड उसको पोजेस करता है, तो फिर 4 मंथ्स का टाइम नहीं मिलेगा उसको प्रॉपर्टी वेकेट करने के लिए, फिर उसको 4 वीक्स का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। सेक्शन 13(4) और सेक्शन 5 में बताया गया है कि वेयर बिल्डिंग इज वेकेटेड ऑन एनी ग्राउंड फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, फेलियर टू पोजेस एंड ऑक्यूपाई विद इन 1 month और ही हैज़ रीलेट द सेम विद इन 2 months आफ्टर ऑक्यूपेशन, द प्रीवियस टेनेंट में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिपोजेशन।
यानी कि वो आपने निकाल दिया टेनेंट को, लेकिन आपने अब ये उधर से कह के निकाला जी कि मुझे खुद ज़रूरत है, और आपने खुद जो है उसमें आप नहीं रहते फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, या आपने उसको ऑक्यूपाई तो कर लिया लेकिन बाद में आपने उसको सबलेट कर दिया विद इन 2 मंथ्स आपने उसको सबलेट भी कर दिया, तो उस वक्त जो है इसका मतलब कि थर्ड मंथ में अगर आप दाखिल होगे सबलेट किया, तो फिर ये एप्लीकेशन, फिर ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोबारा जो है टेनेंट जो है वो दे सकता है एप्लीकेशन फॉर रिपोजेशन। लैंडलॉर्ड, सॉरी मैंने इधर यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई है, इसमें देयर विल बी सिंगल डी, has got vacated the building for the purpose of reconstruction, he has to demolish the same building within 4 months or to construct the building within 2 years after 4 months। यानी कि अगर आपने लैंडलॉर्ड ने बिल्डिंग इसलिए खाली करवाई कि भी उसने उसको कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो पहले उसको जो डिमॉलिश कर रहा है तो उसने उसको 4 मंथ्स में उसको डिमॉलिश करना पड़ेगा, और अगर रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो उस 4 मंथ्स के बाद उसके पास नेक्स्ट 2 साल है कि वो इसको कंस्ट्रक्ट करे। कि ज़ाहिर बात है जब उसने वकेट करना होगा तो उस वक्त वो पूरा बैंक बैलेंस वगैरह दिखाएगा, अप्रूवल सारी टेनेंट कंट्रोलर को बताएगा ना जी कि मेरे पास पैसे भी हैं, मैंने अप्रूवल्स भी ले लिए हैं, तो अब मैंने इसको गिराना है तो इसलिए इसको खाली करवाया जाए। तो ये जो अगर वो गलती से, यानी कि यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन बताई जा रही है लैंडलॉर्ड की, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन द केस ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन ऑफ लैंडलॉर्ड जो टेनेंट है उसके पास क्या राइट्स हैं। अनलेस द लैंडलॉर्ड सेटिस्फाई द कोर्ट he may be punished for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। अब इन दोनों केसेस में उसको सॉरी, बल्कि जो सेकंड केस है स्पेशली ये 13(5) वाला, यानी कि जिसमें उसने वो ज़मीन गिरा दी हो, जो वो बिल्डिंग गिरा दी हो और बाद में बनाए ना, अगर उसके पास कोई रीज़नेबल कॉज है तो ठीक है, अगर कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है तो उसको 6 मंथ्स तक कैद हो सकती है और उस पर जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 13(5)(a) और 13(5)(b), एविक्टेड टेनेंट में अप्लाई टू रेंट, यहाँ पे बात आ रही है टेनेंट के राइट्स की। एविक्टेड टेनेंट में अप्लाई टू रेंट कंट्रोलर फॉर रिपोजेशन इन केस ऑफ सच पनिशमेंट, बट सच पोजेशन इज़ नॉट ग्रांटेड इन केस ऑफ डिमोलिश बिल्डिंग। सारी बात है, अगर बिल्डिंग ही डिमोलिश हो गई तो फिर तो उसको पोजेशन ही दी जाएगी ना। हाँ, लेकिन अगर वो बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हुई अभी या दोबारा बिल्ड, तो उस सूरत में जो है टेनेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है कि भाई देखें जी इसने ज़मीन खाली कर मुझसे बिल्डिंग खाली करवा ली है लेकिन ख़ुद भी उधर नहीं रह रहा और इसने मुझसे झूठ बोला है, तो मुझे दोबारा उसमें किया जाए, रिपोजेशन में मेरे दोबारा दी जाए। एविक्टेड टेनेंट में अप्लाई टू रेंट कंट्रोलर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर पर्सन फॉर रीऑक्यूपेशन। सो अगर वही बिल्डिंग दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है तो रिकन्स्ट्रक्शन पूरी होने से पहले और किसी और टेनेंट के आने से पहले दोबारा एप्लीकेशन टेनेंट दे सकता है कि मुझे दोबारा वही बिल्डिंग दी जाए, क्योंकि वो इस बिल्डिंग में पहले रहता था। रेंट कंट्रोलर शेल ऑर्डर फॉर द सेम स्पेस टू बी गिवन टू एविक्टेड टेनेंट। इट इज़ ऑल्सो अप टू रेंट कंट्रोलर फॉर द फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट फॉर टेनेंट कीपिंग इन व्यू ऑफ द रेंट फॉर द सेम टाइप ऑफ स्पेस इन सच लोकेलिटी। अब अगर वो बिल्डिंग जिसमें वो पहले रहता था और लैंडलॉर्ड ने वो खाली करवाई और उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया, पूरी तरह रिकन्स्ट्रक्शन से पहले अगर टेनेंट जो है वो ये एप्लीकेशन फ़ाइल करता है तो जो कंट्रोलर है वो ये ऑर्डर दे सकता है कि हाँ भी इसी टेनेंट को दोबारा दी जाए, लेकिन उसको वही स्पेस दी जाए और उस स्पेस का जो रेंट है उस लोकेलिटी में, क्योंकि उस रिकन्स्ट्रक्शन में अरसा भी तो गुजर गया होगा ना, तो फेयर रेंट जो है फिर वो कंट्रोलर ने ही करना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 13। इन प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन रेंट कंट्रोलर में डायरेक्ट द टेनेंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ रेंट आइदर बिफोर the issues are framed or on the very first hearing and deposit the same before 15th of each month until the final decision। अब अगर देखिए टेनेंट ने एप्लीकेशन फ़ाइल की और एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद ये नहीं है कि वो रेंट पे नहीं करेगा, उसने रेंट पे करना है और ये वेरी फर्स्ट डे हो सकता है लैंड जो कंट्रोलर है वो उसको कहे जी आप रेंट पे करें, या अगर वो वेरी फर्स्ट डे ना ऑर्डर करे तो हो सकता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से जो है वो पहले कह दे जी कि मैं इश्यूज़ फ्रेम करता हूँ लेकिन आप रेंट मुझे डिपॉजिट करते हैं और हर महीने की 15 तारीख को आप मेरे पास, यानी कंट्रोलर ये कहे कि आप मेरे पास रेंट डिपॉजिट करें। इफ़ द डिस्प्यूट इज़ रिगार्डिंग अमाउंट और रेट ऑफ रेंट, कंट्रोलर में ऑर्डर फॉर एन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट टू डिपॉजिट एनी फिक्स डेट, और इस सेक्शन के ख़िलाफ़ अपील भी नहीं होती।
13 सेक्शन 6 के खिलाफ अपील नहीं है किसी फोरम पे, स्पेशली जब अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ रेंट की बात आती है तो इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती. In case of default, if tenant is an applicant, his application will be dismissed, and in case of respondent, his defense will be struck off. Hence, landlord be put in possession without any further proceedings. अब बात यह है कि अगर जो टेनेंट है वो रेंट ना जमा कराए तो या तो फिर उसकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी जाएगी अगर वो एप्लीकेंट है. अगर उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई तो उसका जो डिफेंस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई लैंडलॉर्ड को कि आप जगह आपको फटाफट दे दी जाए. द अमाउंट डिटर्मिन्ड बाय द कंट्रोलर एट द डिसीजन विल बी एडजस्टेड विद द रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स. अब जो अमाउंट जो है वो कंट्रोलर को दी जाएगी, वो जो अमाउंट है वो जब फाइनल डिसीजन तक इसको आपस में वो एडजस्ट कर लेंगे. सेक्शन 1378 ये बताती है इफ़ लैंडलॉर्ड फाइल्स एन एप्लीकेशन कंटेनिंग प्रेजुडिस एंड बेसलेस, रेंट कंट्रोलर अपॉन हिज सेटिस्फेक्शन में इम्पोज पेनल्टी टू लैंडलॉर्ड. रेंट कंट्रोलर में इम्पोज पेनल्टी टू लैंडलॉर्ड अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 10 months रेंट. यानी कि अगर बिल्कुल ऐसे ही उसने फ्रीविलस या फाल्स एप्लीकेशन दी है तो उस पर 10 month का जो रेंट है उसके मुताबिक उस पर फाइन किया जा सकता है. Rent which tenant deposits upon the order of the rent controller remains payable to landlord until the final decision is made. Rent controller pays it to landlord where petition is concluded in favor of landlord. Rent controller decides the date on which rent is paid to landlord. तो जितना रेंट जो लैंडलॉर्ड जो टेनेंट देता है इस दौरान प्रोसीडिंग के दौरान वो आखिर में लैंडलॉर्ड को दे दिया जाता है इन केस लैंडलॉर्ड जो है वो जीत जाता है बिल्कुल उसी तरह अगर वो वाला केस वो जीतता है. सो दिस वाज द होल प्रेजेंटेशन, द मोस्ट एग्जॉस्टिव सेक्शन ऑफ दिस होल ऑर्डिनेंस, और ये पूरे ऑर्डिनेंस की बैकबोन थी. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.